Good morning, students. Today in this video, we are going to read chapter 4, The Treasure Within. In the first part, we have seen that Hafiz Contractor, who is a leading Indian architect. He was unhappy and careless at school time. He loved doing things, but he didn't like to study. He hated mathematics. He used to have terrible dreams about appearing for a math examination in which he knew nothing at all. And when he reached the third standard, he lost interest in study. And he took interest in games and in playing practical jokes on others, pranks on others. So he passed all the examination by using unfair means, by doing cheating. But later, one sentence spoken to him by his principal changed his life completely when he was in the 11th standard. So principal said that to Hafiz that you are a good student but you didn't have interest in study. So I taken care of you till that day, but now I couldn't take care of you. So you should study hard and sports won't take you so far. So he took his final exam seriously. He worked hard in the 12th class and he got 50% marks in 12th standard in SSC. No doubt he was pulled up by his teachers during his school time. He was received caning every day for not doing homework, for his bad behavior. But caning didn't hurt him badly. But now he forgot all these things when he was in playground. So every Saturday he used to visit movie. He was a leader of a gang of boys. He took parts in going fights. He used to open his textbook only on the day just before exam. In the first part, we have seen his childhood memories about his time during his school days. In the second part, we are going to see his college life, what he had done, how he got admission in college, and what attempts he had done for that, and how he became a great leading architect of India. Let's move to read the part 2 of this chapter. BRC. How did you get into the field of architect? आप इस फील्ड में कैसे आए, आप आर्किटेक्ट के फील्ड में कैसे आए? उन्होंने ये सवाल हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से पूछा. Hafiz contractor saying, in the college for architect, nobody who had got below 80 or 85% was allowed to enter. I had only 50%. I wanted to join the army. I got my admission letter, but my aunt tore it up, and then I decided I want to join the police force. My mother said, don't join the police force, just do your graduation. So I went to join college in Bombay. सो HSC सेइंग हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्ट, जो कॉलेज होते हैं आर्किटेक्ट के, नो बडी हु हैड गॉट बिलो 80 और 85%, जिनकी परसेंट 80 और 85 से कम होती है, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर. उनको परमिशन नहीं होती है एंटर, उनको एडमिशन नहीं मिलता है. आई हैड ओनली 50%, मेरे सिर्फ 50% थे. आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था. आई गॉट माई एडमिशन लेटर, मुझे अपना एडमिशन लेटर भी मिल गया था, बट माई आंट टोर इट अप, लेकिन मेरी आंट ने उसको फाड़ के फेंक दिया. देन आई डिसाइडेड, फिर मैंने डिसाइड किया आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, कि मुझे पुलिस फोर्स ज्वाइन करना है. माई मदर सेड, डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, आपको पुलिस फोर्स नहीं ज्वाइन करना है. मेरी मदर ने मुझे कहा जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, कि आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए. सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, तो मैं जय हिंद कॉलेज गया बॉम्बे में और मैंने वो ज्वाइन किया. देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन, वहाँ मुझे या तो फ्रेंच लेनी थी या जर्मन लेनी थी. दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच, हालांकि मैंने फ्रेंच स्टडी पढ़ी थी फॉर 7 साल तक. आई डिडंट नो इवन 7 वर्ड्स ऑफ फ्रेंच, लेकिन मुझे 7 वर्ड्स भी नहीं पता थे फ्रेंच के. सो आई टुक जर्मन, तो मैंने जर्मन लिया. देन माई जर्मन टीचर डाइड, मेरी जर्मन टीचर की डेथ हो गई. द कॉलेज टोल्ड मी, कॉलेज ने मुझे कहा दैट आई कुड चेंज द कॉलेज, या तो मैं अपना कॉलेज चेंज करूँ और टेक फ्रेंच, या फ्रेंच ले लूँ. नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, मुझे दूसरे कॉलेज में कौन एडमिशन देगा. सो आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, और मुझे जय हिंद कॉलेज में
इन्फ्लुएंस के, किसी के थ्रू, किसी रिकमेंडेशन के थ्रू मुझे एडमिशन मिला था। सो आई थॉट, मैंने ऐसे सोचा ओके आई विल टेक फ्रेंच, मैं फ़्रेंच ले लेता हूँ। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच, और मैंने फ्रेंच सीखना स्टार्ट किया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, मैंने ये मेरी कज़न से सीखा। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, और वो एक आर्किटेक्ट की वाइफ है। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, और मैं आर्किटेक्ट के ऑफिस जाता था फ्रेंच सीखने। Was it then that you decided you wanted to do architect? So इसी तरह आपने यह डिसाइड किया कि आपको आर्किटेक्चर में करना है, आपको आर्किटेक्ट फील्ड में जाना है। So Hafiz contractor is saying, actually it all happened quite by chance. ये सब कुछ luckily ये सब कुछ हुआ। In the architect office, I saw somebody drawing a window details. मैंने देखा एक पर्सन ड्रॉ कर रहा है विंडो डिटेल्स। सो अ विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस ड्राइंग, ये बहुत एडवांस ड्राइंग होती है। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, और मैंने उसे कहा कि आपने जो ड्राइंग बनाई है वो गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, जो विंडो उसने बनाई है वो खुलने वाली नहीं है। ही देन हैड अ बैट विद मी, उसने मुझसे इस बात पर शर्त लगाई। लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, और बाद में उसे पता चला उसकी ड्राइंग वाकई में गलत है। सो माई कज़न्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज, वो बहुत सरप्राइज हुआ। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, उन्होंने मुझे कुछ स्पेसिफिक थिंग ड्रॉ करने के लिए कही, विच आई इमिडिएटली डिड, और मैंने वो फटाफट कर दी। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस, उसने मुझे एक घर बनाने के लिए कहा। एंड आई डिज़ाइन अ हाउस, और मैंने वो घर भी बना दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग, उन्होंने मुझसे कहा आप सब कुछ छोड़ दो एंड जॉइन आर्किटेक्ट, और आर्किटेक्ट ज्वाइन करो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, हम प्रिंसिपल से मिलने गए उस कॉलेज के। द प्रिंसिपल वार्न मी, प्रिंसिपल ने मुझे वार्न किया, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, मैं आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको देना पड़ेगा, बट इफ़ यू डोंट डू वेल, अगर आप वहाँ पर अच्छा नहीं करते हैं, आई विल नॉट अलाउड टू यू टू ज्वाइन दिस कॉलेज, तो मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा कि इस कॉलेज को आप ज्वाइन करें। I got an A+ in the entrance exam and from that day it was a catwalk, और मुझे A+ मिला एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और उसी दिन से ये सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था। इट वॉज़ अ कैटवॉक, कैटवॉक मीन स्मूथ वॉक। आई हैड नेवर मेड प्लान, मैंने कभी कोई प्लान नहीं बनाया, बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक लाइक फ्रॉम द टॉप, लेकिन मुझे ये सब समझ में आता था कि सारी चीज़ें ऊपर से कैसे दिखाई देती हैं, अपीयर होती हैं। आई हैड नेवर नॉन वट ए सेक्शन वॉज, मुझे ये नहीं पता था कि सेक्शन क्या होता है, बट आई न्यू इफ़ यू कट ए प्लान, अगर आप कोई प्लान कट करते हैं, वॉट इट वुड लाइक, तो ये कैसे दिखता है। आई स्टूड फर्स्ट क्लास थ्रू आउट, मैं फर्स्ट क्लास रहा पूरे ईयर। आफ्टर दैट, उसके बाद आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग कैम फ्रॉम व्हाट आई यूज़ टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल, और मुझे लगता है ये सारी अंडरस्टैंडिंग मुझे तब मिली जब जो मैं गेम खेला करता था अपने स्कूल टाइम में, और जो भी मैंने अपने स्कूल टाइम में किया। I had a friend called Behram Divecha. We used to have competition between us for designing forts, gun and ammunition. और मेरा एक फ्रेंड था बहराम, और हम दोनों में एक कंपटीशन होता था, हेल्दी कंपटीशन बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, डिज़ाइन फोर्ट करना, गन डिज़ाइन करना, एमिनेशन डिज़ाइन करना। एमिनेशन द मटेरियल विच इज़ यूज फॉर द वार, गोला बारूद वगैरह। सो ईच ऑफ अस वो डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, और हम लोग ऐसे डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते थे, एफर्ट्स करते थे कि वो डिफरेंट हो। In school, when I was in the 2nd or 3rd standard, one of my teacher, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me, "See, you are useless in everything else, but your sketches are so good. When you grow up, you become an architect." I did not know at the time, but she was right. Later, after I became an architect, I went back to meet her and tell her. So during school time, when I was in a 2nd or 3rd standard, जब मैं 2nd और 3rd standard में था, तो मेरी एक टीचर थी मिसेस गुप्ता, उन्होंने मुझसे कहा, जब उन्होंने मेरे स्केचेस देखे, शी सो माई स्केचेस एंड टोल्ड मी, और उन्होंने मुझसे कहा, सी यू आर यूजलेस, कि आप यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स, आप किसी भी चीज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, बट योर स्केचेस, लेकिन जो आपके स्केचेस हैं आर गुड, बहुत अच्छे हैं। व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े होंगे, यू बिकम एन आर्किटेक्ट, तो आप एक आर्किटेक्ट बनिए। आई डिड नॉट नो एट द टाइम, मुझे उस टाइम पता नहीं था, बट शी वॉज राइट, वो ठीक थी, वो करेक्ट थी। लेटर आफ्टर आई बिकम एन आर्किटेक्ट, और उसके बाद मैं आर्किटेक्ट बना। आई वेंट बैक टू मीट हर, और मैं उनके पास दोबारा गया मिलने एंड टेल हर, और मैंने उन्हें बताया मेरे अपने बारे में। BR
बेला राजा सिंह, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको पढ़ाई पसंद नहीं थी? वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कॉप एंड कुड नॉट डील विद द करिकुलम? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ों से कॉप अप नहीं कर पाओगे और डील नहीं कर पाओगे करिकुलम से रिलेटेड? जो आपका सिलेबस था आप उसको कर नहीं पाओगे, डील नहीं कर पाओगे। सो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर सिंह, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, मुझे लैंग्वेजेस में बिल्कुल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड नॉट डील विद, साइंस और ज्योग्राफी मुझे समझ में नहीं आती थी। मैथ्स वॉज वेरी बैड, मैथ भी मेरा बहुत बुरा था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं पढ़ने के लिए ही पढ़ रहा था। एंड वॉट दे टॉट मी टूडे, उन्होंने जो मुझे सिखाया था, आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद मैं भूल जाता था। आई वुड नॉट बॉदर, मैं परेशान नहीं होता था, बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि वो एप्लीकेशन कहाँ से, मतलब इन चीज़ों को दोबारा से किस तरीके से शुरू किया जाए। BR, did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught you lost interest in the rest of the lesson? So क्या आप ऐसा सोचते हैं what they taught in school, जो उन्होंने स्कूल में पढ़ाया है was boring, वो सब कुछ बोर है? Or did you feel that once you understand the concept, कि अगर आप कंसेप्ट सीख जाते हैं और what was being taught, कि क्या पढ़ाया जाने वाला है, you lost interest in the rest of the lesson, तो आपका रेस्ट ऑफ जो बाकी का बचा हुआ चैप्टर है आपका उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। सो लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम सिर्फ अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। नाउ डेज देयर आर सो मैनी टेस्ट, अब तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, पहले जब हम टेस्ट दिया करते थे वी यूज टू जस्ट कॉपी, हम कॉपी करते थे। द टीचर थॉट, तो टीचर ऐसा सोचता था डैट वी हैड डन आवर वर्क, कि हमने अपना काम कर लिया है। बेला राजा, देयर इज़ अ कंटेंशन दैट गिफ्टनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटी गो हैंड इन हैंड। क्या आपको लगता है कि डिसएग्रीमेंट, कंटेंशन मीन डिसएग्रीमेंट मतलब डिफरेंस होना, कि गिफ्टनेस जो हमें गिफ्टेड थिंग्स होती हैं और जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जो हम सीख नहीं पाते हैं, गो हैंड इन हैंड, ये साथ साथ चलती हैं। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई करती हैं? HC, वेल टेक सम स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास, कुछ स्टूडेंट्स को लीजिए जो मेरी क्लास के हैं। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स, जो हमेशा अपनी लाइफ में अच्छा करते थे, फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन लेते थे, दे आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स, वो ऑर्डिनरी जॉब्स कर रहे हैं। I have come across this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinary today. So I have come across, मेरे सामने भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आई हैं in so many different places, बहुत सारे places में where people tell me, जहाँ लोग मुझे बताते हैं that their class toppers, जो उनके class toppers हैं, are doing very ordinary today, कि वो बहुत ordinary jobs कर रहे हैं। HC, in schools I think living our life they are made us street smart, and I have learned more by doing what I did on my own than what academics would have taught me. So in स्कूल में जो बताया गया, I think, मैं ऐसा सोचता हूँ, लिविंग आवर लाइफ, जो हमने अपनी लाइफ स्पेंड की, दे आर मेड अ स्ट्रीट स्मार्ट, तो हमें वो स्ट्रीट स्मार्ट मीन जो हम लोग करके सीखते थे, स्मार्ट बाय डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली, या खुद करके सीखते थे, तो उससे हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें अपने से ही सीख ली हैं। आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग, और मैंने सब कुछ करके सीखा है। व्हाट आई डिड ऑन माई ऑन, और खुद से सीखा, दैन वट एकेडमिक्स वुड हैव टोल्ड मी, और मुझे एकेडमिक्स ने जो सिखाया उससे ज़्यादा मैंने अपने आप से खुद से सीखा है। दैट इज़ बिकॉज पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, you were able to find expression in a manner you were comfortable with, and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do. So that is because, ये सब कुछ इसलिए है because the personality and skills were there, क्योंकि आपके पास personality थी and you have skills, और आपके पास skills भी थी, and you were able to find, और आप ये सब कुछ कर पाए, यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल थे, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल थे, एंड यू डिफाइड एवरी रूल, और आपने सारे रूल्स तोड़े हैं, सो डैट नो बडी वुड स्टॉप यू, और कोई भी आपको नहीं रोक पाया, फ्रॉम व्हाट यू नीडेड टू डू, जो आप करना चाहते थे, जिसको आपको करने की ज़रूरत थी।
Hafiz contractor saying, I was more interested in other thing. If, for example, while in class it started raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it. I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold. That was my interest for the day. सो आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग, मुझे दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था. इफ़ फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, वाइल इन क्लास, जब क्लास में इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, अगर बारिश हो रही है बाहर, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर, तो मैं जो वाटर बह रहा है उसके बारे में सोचता. एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट, और कैसे डैम बनाया जाए ताकि वो वहाँ पर पानी रोक सके. एंड आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन, और मैं ये सोचता कि फ्लो ऑफ वाटर कैसा है विद इन डैम के अंदर, एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और डैम कितना वाटर रोक सकता है. दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे. और उसी दिन मैं उस चीज़ पर वर्क करता, मुझे वैसे ही इंटरेस्ट आता कि किस तरीके से डैम बनाया जाए और कितना पानी वो रोक सकता है. तो वो सारी चीज़ें उसके इंटरेस्ट का होता था उस दिन. When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me. I would cut a button for them for chalk using a blade. Discipline in the school was very important. No student could afford to have a button missing. The student would get past dinner with a full neat uniform. After that, it did not matter. वैन स्टूडेंट लॉस्ट अ बटन, जब स्टूडेंट्स का बटन खो जाता था, बाई प्लेइंग और फाइटिंग, खेलते समय या लड़ते समय, दे वुड कम रनिंग टू मी, तो वो मेरे पास भागते हुए थे. एंड आई वुड कट अ बटन फॉर देम, और मैं उनके लिए बटन बनाता फ्रॉम चॉक से, यूजिंग अ ब्लैड को यूज़ कर सकते. डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. स्कूल में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था. एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग, और कोई भी स्टूडेंट ये अफोर्ड नहीं कर पाता था कि किसी की शर्ट में बटन ना हो. द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म, और स्टूडेंट को तभी डिनर मिलता था जब उनकी पूरी फुल नीट यूनिफॉर्म हो तभी. एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर, और उसके बाद कोई मैटर ही नहीं करता अगर आपके अगर शर्ट में बटन लगा हुआ है नहीं लगा हुआ. लेकिन बिफोर द हैविंग lunch, before having dinner, you must have button in your shirts. You have full neat uniform. BR, Bila Raja is saying, coming to the present. अब present time की बात करते हैं. How do you decide as to what kind of structure you want to give a client, कि आप अपने client को किस तरीके का structure देना चाहते हैं, किस तरीके की design देना चाहते हैं, आप ये कैसे decide करते हैं. Hafiz contractor, I look at the client's face, his clothes, the way he talks, the pronouns, the way he eats, and I would know what his taste would be like. पहले मैं उस पर्सन की तरफ देखता हूँ, उसके क्लोथ से, उसके बात करने के तरीके से, उसके प्रोनाउंसिएशन से, और वो किस तरीके से खाना खाता है, और डेट आई वुड नो, और तब मुझे पता चल जाता है कि उसका टेस्ट क्या है, उसे क्या पसंद आएगा. आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे डैट वुड बी कम्फर्टेबल. मैं उन चीज़ों को रिलेट करता हूँ और ताकि वो लोग भी कम्फर्टेबल हों. आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली on a paper on the spot. That paper I give to my people in the office, and I sketch very spontaneously without an effort. He put a sketch on a paper on the spot, and that paper, वही paper I give it to my people, और मैं मेरे लोगों को देता हूँ मेरे ऑफिस में. You do it instinctively mean naturally, not coming from training or based on reasoning. You have done instinctively. So BR is asking to him, क्या आप ये सब कुछ naturally कर लेते हैं. H is saying, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, कॉल इट इंस्टिंक्ट, आप इसे इंस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं, कॉल इट अर्थमेटिक या अर्थमेटिक बोल दो, वट एवर यू वॉन्ट टू से, जो भी आप बोलना चाहें. नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, ये मेरे लिए मैथमेटिक्स की तरह है. पुटिंग डिज़ाइन रखना, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी टुगेदर, सब कुछ, एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक, और सबको जोड़कर एक साथ एक स्केच बनाना, मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक, और यही मैथमेटिक्स है. Now here we almost come to a full circus where contractor has derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डिराइव हिज ऑन इंटरप्रिटेशन, उनका खुद का एक्सप्लेनेशन है मैथमेटिक्स के लिए, कि टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट, कि जो सब्जेक्ट उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था, जिन्हें वो उससे नफरत करते थे, नाउ ही लव्स डीलिंग विद, और वो उसे डील करना बहुत पसंद करते हैं. अब वो उन्हें सब्जेक्ट एज एन आर्किटेक्ट ही लव्स दैट सब्जेक्ट, ही लव्स मैथमेटिक्स.
So the treasure within refers to the hidden talents of the every child who has his own styles of doing things, who has own style of learning and area of interest. So not a very topper in the academics become an achiever in life. So every child can achieve greatness in his areas of interest.